Success Mantra. We shape future. Hello, good morning everyone. My name is Abhay Singh and I welcome you all in today's video analysis of The Hindu by Success Mantra. So today is 27th of March and to begin with the set standard to set format, today is 27th of March and today is World Theatre Day. So today is World Theatre Day और World Theatre Day जो था वो सबसे पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था? इन द ईयर 1962. ठीक है. So moving on to the next important news headline for the 27th of March 2024. So the first news headline for today is, this is a report by International Labour Organization. So we'll see this report, what are the main ingredients and components of this report. We'll see all things one by one. So what is the title of this particular article is that employment scenario in India grim, says ILO report. So what we will see this particular article and we will see different type of data sets that are being discussed in this particular article. So to begin with, the share of those with secondary or higher education among the unemployed youth in India has almost doubled from 35.2% in 2000 to 65.7% in 2022. So this particular article talks about जो unemployment है, जिनके पास higher education है, उन लोगों के बीच में जो employment है वो बहुत ज़्यादा उसमें जो है उस नंबर में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है. वो नंबर कितना था? 35.2% in 2000, which is now at 65.7% in 2022. So this report this report is released by International Labour Organization and Institute of Human Development, IHD. So these are the two institutes to release this particular report. So we should know a bit more about this particular institute or organization, ILO. So ILO के बारे में हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं. So ILO was established in 1919, headquartered at Geneva. A parent organization is UNGA and Director General Gilbert Hongbo. So these are the 4 facts related to International Labour Organization. Now coming on to the important data sets and the relevance of those data sets for Indian citizens. We would like to focus on those important things. So what what does this report says? That the report says that youngsters account for almost 83% of the country's unemployed workforce. So the youngsters in India contribute to 83%, or the youngsters contribution is 83% in the total unemployment India. Now what is the disturbing fact, और हम एक क्या ऐसी चीज़ है जिस पे हम लोगों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एडुकेटेड यंगस्टर्स हैं उनके बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत ही ज़्यादा है. और ये ऐसा कब हुआ था? जो कोविड का पीरियड था, पैंडमिक के टाइम पे, जो मतलब हाईली एजुकेटेड लोग थे वो अनएम्प्लॉयड ज़्यादा इसलिए हो गए थे क्योंकि उस पर्टिकुलर ब्रीफ टाइम के लिए बहुत सारी चीज़ें रुक गई थी. तो जो वो चीज़ें रुक गई थी तो जो एम्प्लॉयड लोग थे वो सारे के सारे अनएम्प्लॉयमेंट हो गए थे, क्योंकि बहुत सारी जो प्रोडक्शन और सर्विसेज से जुड़ी हुई चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी पोस्ट कोविड-19. सो उस वजह से भी उस पर्टिकुलर टाइम पे जो यंगस्टर्स हैं, जो एजुकेटेड यंगस्टर्स हैं, उनके बीच में एम्प्लॉयमेंट का जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो हायर थोड़ा सा दिखा रहा है. नाउ कमिंग ऑन टू this important term that is used in the third paragraph of this particular article is the labor force participation rate. So what is this labor force participation rate? So let me explain you what is this labor force participation rate is. So labor force participation rate is nothing but it is a measure of the
proportion of the country's working age population that engages actively in the labor market either by working or looking for the work. So लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बेसिकली जो होता है वो ये चीज़ मेज़र करता है, जो कंट्री की टोटल वर्किंग पॉपुलेशन है जो काम कर सकती है या एक्टिवली लेबर मार्केट में इन्वॉल्व है, उसमें से कितने लोग हैं जो अभी काम कर रहे हैं या काम के लिए देख रहे हैं. सो ये होता है बेसिकली लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. हाउ इज दैट लेबर फोर्स इज पार्टिसिपेटिंग इन द डिफरेंट मार्केट एक्टिविटीज़. तो ये चीज़ जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हम लोग किसे कहते हैं. तो अब हम लोग थोड़ा सा एक अगला जो इम्पोर्टेंट हमारा जो आज का जो डेटा है हम लोग उसकी तरफ बढ़ते हुए चलेंगे. तो इसमें जो अगला इम्पॉर्टेंट डेटा है वो ये है कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ वर्कर्स रिमेन इंगेज्ड इन इनफॉर्मल वर्क वाइल द शेयर ऑफ रेगुलर वर्क विच स्टेडली इंक्रीज आफ्टर 2000 डिक्लाइंड आफ्टर 2018. सो इनफॉर्मल सेक्टर में जो काम लोग कर रहे हैं उनका जो नंबर है वो 2000 के बाद बहुत मतलब स्टेडली तरीके से बढ़ रहा था, बट पोस्ट 2018 इस नंबर में जो है वो थोड़ा बहुत गिरावट आई है जो लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे थे. सो इनफॉर्मल सेक्टर बेसिकली एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है जिसको मतलब इनफॉर्मल सेक्टर जो डे टू डे जैसे काम हो गए या जिनको जिनको लेकर के कोई सेट गाइडलाइंस है जिनको गवर्न नहीं किया जा सकता, जैसे जो लेबर अड्डे पे लेबर मिलते हैं जो डेली काम करने जाते हैं, जैसे किसी का घर बनाना है, या इनफॉर्मल सेक्टर जिसमें कोई श्योरिटी नहीं है. तो ये उसमें जो है उसमें 2018 के बाद जो है इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोगों के नंबर में एक डिक्लाइन हुआ है. और हम सब लोगों को एक चीज़ या एक डेटा तो पता ही होगा कि ऑलमोस्ट जो इंडिया का है या डेटा क्या कहे, एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इंडिया के बारे में कही जाती है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन या जो वर्किंग पॉपुलेशन है इट्स अ काइंड ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड फॉर इंडिया. तो हमको इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को एक अच्छे से इन कैश भी करवाना है, इंसेंटिवाइज भी करवाना है. विल यूज दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड इन द वेलफेयर ऑफ अ कंट्री और टू इंक्रीज द इकोनॉमिक और जीडीपी ग्रोथ और नेशनल इनकम ऑफ आर सिटीजन्स ऑफ आर कंट्री. तो ये वर्कफोर्स को अच्छे इस वर्कफोर्स का यूटिलाइजेशन अच्छे से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और इस वर्कफोर्स को ये जो लार्ज वर्कफोर्स है इंडिया का, जो यंगस्टर्स है, जो यूथ है, इसको हम कैसे एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं. तो डिफरेंट काइंड ऑफ जो स्किल सेट होते हैं उन स्किल सेट को हम डेवलप करके अंडर डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हम उस चीज़ को मतलब उनके जो एम्प्लॉयबिलिटी है, मतलब जो एम्प्लॉयबिलिटी है यंगस्टर्स की, उसको बढ़ाया जा सकता है. इसको लेकर के गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चल रहे थे, जैसे एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चली थी जिसमें अलग अलग सेंटर्स खोले जाते थे. वहाँ पे उन सेंटर्स पे बेसिकली जो यंगस्टर्स होते थे उनका जो कोई एक पर्टिकुलर स्किल सेट होता था वो डेवलप किया जाता था. वो स्किल सेट कैसा भी हो सकता था कि वो आपको कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिखाते थे या डेटा एंट्री से जो रिलेटेड छोटे छोटे काम थे, जस्ट टू इंक्रीज द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड टू इनकैश द डेमोग्राफिक डिविडेंड दैट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट. ठीक है, तो इस डेटा के बाद हम लोग अब हम लोगों को ये हम स्किल सेट या डिफरेंट डिफरेंट स्किल सेट्स की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जिस वर्कफोर्स की बात हो रही है ये फिजिकली तो मतलब ये फिजिकली दिस वर्कफोर्स इज़ फिजिकली फिट, बट इनका जो काम की रिक्वायरमेंट है कि ये बेसिक्स जो हैं जो किसी काम के होते हैं वो कितना कर सकते हैं. तो एक जो डेटा है वो इस चीज़ से जुड़ा हुआ है. तो इस डेटा को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं. तो ये डेटा क्या कहता है, विथ 75% ऑफ यूथ अनेबल टू सेंड emails with attachment, 60% unable to copy and paste files, and 90% unable to put a mathematical formula into a spreadsheet. So these are the different kind of stats which depicts a clear picture कि हमारे देश में यूथ जो अभी है, हमारे देश का जो यूथ है उसकी अभी जो बेसिक स्थिति है वो क्या है. तो वो इस चीज़ से हम एकदम क्लियरली देख सकते हैं कि जो 75% हमारा यूथ है वो ईमेल, वो एक ऐसा ईमेल जिसके साथ में अटैचमेंट भी होता है वो नहीं भेज सकते हैं. 60% जो है वो कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं फाइल्स को. दैट्स अ वेरी इजी टास्क. CTRL+C CTRL+V. तो अगर आप ये देख रहे हैं ना कि एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, आजकल AI का ज़माना है, एवरीथिंग इज़ डिजिटाइज्ड.
तो जब जैसे जैसे डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे हर एक चीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ रही है, तो ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं ये आपकी एम्प्लॉयबिलिटी को बहुत बढ़ा देती हैं, बिकॉज एवरी ऑर्गेनाइजेशंस नाउ अ डेज नीड्स अ कंप्यूटर एंड अ पर्सन टू ऑपरेट दैट कंप्यूटर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है कि आपको एक ईमेल अटैचमेंट के साथ में भेजना आना चाहिए, आपको कॉपी पेस्ट करना आना चाहिए फाइल्स को, या आपको जो मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं इनको एक्सेल शीट में डिफरेंट डिफरेंट शीट्स में यूज़ करना या स्प्रेडशीट में यूज़ करना आना चाहिए। तो ये एक चीज़ है, ये चीज़ दिखाती है, डेटा सेट क्या दिखाता है कि मेन रीज़न क्या है इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट होने का। क्योंकि जो बेसिक ऑपरेटिंग चीज़ें होती हैं किसी जैसे कंप्यूटर में या किसी भी चीज़ को रन करने के लिए, वो स्किल सेट ही हमारे यूथ के पास नहीं है। तो ये एक मेन रीज़न है कि हमारे देश में या यूथ के बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक इतना पॉपुलर नोशन क्यों बना हुआ है। अब थोड़ा बहुत हम लोग सोशल इनक्वालिटीज़ के बारे में भी बात कर लेते हैं कि सोशल इनक्वालिटीज़, हाँ, जस्ट अ मोमेंट, या ओके, सॉरी। So, throwing light on the growing social inequalities, the report, despite affirmative action and target policies, the scheduled caste and scheduled tribes still lag in terms of access to better jobs. Scheduled caste and scheduled tribes have greater participation in work due to economic necessity, but engaged more in low paid, temporary, casual wage work and informal employment. तो सोशल इनक्वालिटीज़ के बारे में ये पर्टिकुलर आर्टिकल बात कर रहा है। तो सोशल इनक्वालिटीज़ क्या होती हैं कि जो हमारे सोसाइटी में लोअर स्ट्राटा में लोग रह रहे हैं, फिर वो चाहे इकोनॉमिक या सोसाइटल किसी भी तरीके के स्ट्राटा में रह रहे हैं, बेसिकली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से जुड़े हुए जो लोग हैं वो बेसिकली ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर में इंगेज रहते हैं, वो काम करते हैं। इसका एक मेन रीज़न ये भी है कि उनको उस काम की ज़रूरत है, नेसेसिटी है, बिकॉज दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ बैकअप कि अगर वो काम नहीं करेंगे सो देयर हाउसेज विल रन, उनके हाउस होल्ड चीज़ें जो हैं वो डे टू डे वो रन करती रहेंगी। ऐसा नहीं है, तो इसी चीज़ को लेकर के, और वो बेसिकली जो जिन कामों में वो इन्वॉल्व रहते हैं वो बेसिकली बहुत ही लो इनकम वाले काम होते हैं, उनमें बहुत जो उनका वेजेस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा मिनिमल या बहुत ही ज़्यादा कम रहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जो सोशल इनक्वालिटी होती है अमंग द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द कंट्री और डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, उनके बीच में वो इनकम इनक्वालिटी जो होती है ना वो डे बाय डे बढ़ती जाती है। सो व्हाट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ द गवर्नमेंट का एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है वो क्या होता है, टू ब्रिज दिस गैप, टू ब्रिज दिस इकोनॉमिक और द फाइनेंशियल गैप बिटवीन द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ आर इकोनॉमी। ठीक है, तो ये चीज़ को के बारे में भी ये रिपोर्ट ये थोड़ा सा बात करता है। और हमारे कंट्री के लिए ये सारी जो जो सोशल इनक्वालिटीज़ से जुड़ा हुआ चीज़ है ये हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारी कंट्री एक ऐसी कंट्री है, वी हैव population, we have like more than 640 डिफरेंट डिस्टिंक्ट ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट के लोग, एससी कम्युनिटी के लोग हैं, तो उसमें भी फिर सब क्लासिफिकेशन आ जाता है। तो इतने सारे लोगों के, इतनी सारी कम्युनिटीज़ को हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो एक जो बेसिकली हमको एक इंक्लूसिव मॉडल की ज़रूरत है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन फॉर द डे, एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन फॉर द डे इज़ Sensing China threat, India joins Sri Lanka in race for seabed mining, applies for exploration rights। तो अगली जो चीज़ है, तो इंडिया ने बेसिकली क्या किया कि इंडिया ने सीबेड माइनिंग जो होती है, जो मतलब एक समुद्र का जो सबसे नीचे वाले जो समुद्र के नीचे, पानी के नीचे जो ज़मीन होती है उसको सीबेड होता है, उसकी माइनिंग के लिए बेसिकली इंडिया ने अप्लाई किया है सीबेड एक्सप्लोरेशन के लिए। तो सीबेड एक्सप्लोरेशन के लिए हम लोग कहाँ पे अप्लाई करते हैं, या अगर किसी भी कंट्री को सीबेड एक्सप्लोरेशन के लिए अप्लाई करना है उसके लाइसेंस को पाने के लिए, तो वो कहाँ पे अप्लाई करेगा, तो दैट पर्टिकुलर कंट्री विल अप्लाई टू द इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। अब इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी एक ऐसा जो ओशन अफेयर से रिलेटेड या जो सीबेड, ओशन सीबेड से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उन अफेयर्स को मैनेज करता है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी की इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, सो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी International Seabed Authority was established in
1994 डेट वाज 16th ऑफ नवंबर। सो 16th ऑफ नवंबर 1994 का इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी जो ISBA है उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सो हेडक्वार्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ISBA इज एट किंगस्टन। किंगस्टन कहाँ है? किंगस्टन इज इन जमाइका। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 16th नवंबर 1994 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी इज़ एट किंगस्टन जमाइका। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा इस आर्टिकल पे वापस फोकस करेंगे। तो ये आर्टिकल वैसे भी आप लोगों ने अभी कुछ दिन पहले एक और न्यूज़ आया था, 4 दिन पहले का न्यूज़ एनालिसिस था, उसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि इंडिया ऑलरेडी मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन के लिए अफ्रीका को एक टारगेट डेस्टिनेशन वो कंसिडर कर रहा है। अब इंडिया जो है वो मिनरल्स और इन सीबेट माइनिंग के लिए अलग अलग ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा है। इस आर्टिकल से ये चीज़ क्लियर हो जाती है। ठीक है, India has applied to the International Seabed Authority for rights to explore two vast tracts in the Indian Ocean seabed that aren't part of its jurisdiction. तो इंडिया ने जो दो वास्ट ट्रैक्ट्स हैं मिनरल्स के ओशन सीबेड के, जो उसके जुरिस्डिक्शन का पार्ट नहीं है, उनको एक्सप्लोर करने के लिए ISBA में लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, अब जो इस रीजन के जो राइट्स थे इनको ऑलरेडी किसके लिए एक और कंट्री, हमारी जो नेबरिंग कंट्री है श्रीलंका, उसके द्वारा क्लेम किया जा चुका है। बहुत सारी जो एशियन कंट्रीज़ हैं, या आप अभी कुछ कुछ और कंट्रीज़ देखेंगे, जो एशियन कंट्रीज़ हैं वो जो सीबेड माइनिंग है उसके लिए क्यों इतना ज़्यादा इंडियन ओशन की जो सिम है उसमें इतना ज़्यादा वो लोग क्यों लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं? द मेन रीज़न फॉर दिस इज़ कि जो चाइना का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, जो चाइना का इन्वॉल्वमेंट है वो दूसरे के जो टेरिटोरियल वाटर्स में वो कैसे एंट्री कर रहा है, कैसे वहाँ पे अपना डोमिनेंस दिखा रहा है, उस चीज़ को लेकर के या उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, चाइना की डोमिनेंस को कम करने के लिए हम लोगों ने बेसिकली ये एक स्टेप उठाया है। ये एक वन ऑफ द मेन रीजंस है कि हमने एक स्टेप उठाया है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बेसिकली जो एक this application to explore one of these regions, a cobalt rich crust along known as FNAC निकेटिन seamount ANC seamount। ठीक है, तो जिस जगह पे एक्सप्लोर करने के लिए इंडिया ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, उस जगह का नाम में आप लोग याद रखेंगे FNAC निकेटिन seamount, इसको ANC seamount भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो ISBA होता है ये एक ऑटोनॉमस बॉडी होती है। ISBA जो होता है, और ये ऑटोनॉमस बॉडी किसके अंदर होती है? तो ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इस्टेब्लिश किया गया है UN क्लॉज के अंदर, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ठीक है, तो UN क्लॉज के अंडर ISBA का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अब हम लोग ओपन सी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ओपन सी क्या होता है। आप लोगों को पता होगा कि ओपन सी, जैसा कि आप लोग टर्म से ही समझ पा रहे हैं, खुला हुआ समुद्र, यानी कि एक ऐसा एरिया जिस एरिया में किसी भी कंट्री के राइट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, किसी भी कंट्री ने अपने राइट्स नहीं क्लेम कर रखे हैं किसी भी एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ सी पे, तो उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ सी को हम लोग ओपन सी बोलते हैं। ठीक है, और हर एक कंट्री के पास एक एक्सक्लूसिव राइट होता है। ठीक है, एक्सक्लूसिव राइट एज इन, सो व्हाट आर दिस एक्सक्लूसिव राइट? अप टू 200। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जो 200 नॉटिकल माइल्स की बात कर रहा है, वो 200 नॉटिकल माइल्स क्या है? सपोज अगर ये इंडिया का मैप का लोअर पार्ट है, ये कोस्टल लाइन आप लोग देख पा रहे होंगे, तो इस कोस्टल लाइंस के इस साइड से जो लास्ट पार्ट होगा यहाँ से एकदम लैंड का, यहाँ से 200 नॉटिकल माइल तक इंडिया का, यहाँ का जो वाटर होगा, ये 200 नॉटिकल माइल तक का ये जो वाटर होगा, इंडिया पे इसका एक्सक्लूसिव राइट होता है कंट्री का। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। ओपन वाटर इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, और ओपन सी इसके जस्ट ऑपोजिट होता है। ओपन सी का मतलब क्या होता है? ओपन सी एक वैसा पार्ट है, मैंने आप लोगों को बताया, कि जिसपे किसी भी कंट्री का राइट नहीं होता है, या किसी भी कंट्री ने अपना राइट नहीं क्लेम किया होता है। तो इतने पर्टिकुलर एरिया के लिए 200 नॉटिकल माइल्स में आप ऑलरेडी सीबेड माइनिंग या किसी भी तरीके की आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा एक इसमें अलग अलग पॉइंट्स जो हैं उनको हम लोग कवर कर लेते हैं। टू
To claim so, however, a country must give a detailed scientific rationale to show this unbroken land connect to a scientific commission appointed by the ISBA. ठीक है, तो बेसिकली जो 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है वो एक्सक्लूसिवली उस कंट्री के पास होता है। बाकी फिर अगर ओपन सी वाला कोई एरिया होता है जहाँ पे वो आपको सी एक्सप्लोरेशन के लिए मतलब या सी बेड माइनिंग करनी है, तो उसके लिए आपको ISBA में यानी कि इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी जो है उसमें अप्लाई करना होगा, और वहाँ पे भी आपको एक साइंटिफिक रैशनल स्टैब्लिश करना होगा कि वो साइंटिफिक रैशनल क्या है, अनब्रोकन लैंड कनेक्ट कि जो मतलब जैसे अब एक मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी एक ये कंट्री है, आपके कंट्री का ये बॉर्डर है और आपने यहाँ से ना 600 एक नॉटिकल माइल कोई एक एरिया था वहाँ पे आप क्लेम कर रहे हैं कि हमको ये हमारा पार्ट है या ये किसी भी तरीके से हमारे कंट्री को बिलोंग करता है, यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं या जो मिनरल्स हैं उसके लिए आपको एक अनब्रोकन कनेक्ट लैंड कनेक्ट दिखाना पड़ेगा टू क्लेम दिस। और ये जो होगा ये आप ISBA द्वारा अपॉइंटेड एक कमेटी होगी या कमीशन होगा, उसके सामने आपको ये अपने एप्लीकेशन के साथ चीज़ें प्रूव करनी पड़ती हैं। ठीक है, और अगर एक बार फिर आपको जब वो लाइसेंस मिल जाता है तो फिर आपकी उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे आपको सीबेड माइनिंग के राइट्स मिले हैं उस एरिया में आपके प्राइमेसी हो जाएगी, या यू विल दैट पर्टिकुलर कंट्री विल हैव द प्राइमेसी ओवर ऑल द रिसोर्सेज टू एक्सप्लोर ऑल दोज मिनरल्स and potentially utilize them for the sustainable development. Moving on to the next important news headline for the day. So these all are the political news items which start from page 2 onwards. तो इनकी हमारे लिए as of now कोई relevance नहीं है, because they won't ask in the examinations कि किस पार्टी का किसके साथ coalition हुआ है कि या पार्टी या सीट शेयरिंग में हाउ मैनी सीट्स डज BJP गेट और फिर JLP। तो ये सारी चीज़ें कुछ नहीं इंपॉर्टेंट हैं, जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पे फोकस करते हैं। सो मूविंग ऑन टू दिस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन, इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें एक ये वन लाइनर जैसी चीज़ है, ये आपको याद रखनी है। तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में तो सबको ही पता होगा। सो कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में एक हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं। पहले तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट किन किन स्टेट्स के बीच में था। सो इट्स वॉज बिटवीन तमिलनाडु, कर्नाटका, देन केरला एंड पुडुचेरी। ठीक है, तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स था इन 4 स्टेट्स के बीच में था। ये न्यूज़ हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, तो जो मद्रास हाई कोर्ट की फॉर्मर जज थी प्रभाश्री देवन, उन्होंने कावेरी वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड एक बुक लिखी है, और उस बुक का नाम क्या है, एक्सक्यूज मी। So the title of the book is Kaveri, a long-winded dispute. So you have to remember this thing, the name of the book, and who is the author of this book. So the author of this book is Prabha Sridevan, and the title of this book is Kaveri, a long-winded dispute. And this particular Kaveri water dispute is between 4 states: Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, and Puducherry. सो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेंगे दैट आपको एक ऑप्शन दे देंगे कि कौन सा एक ऐसा स्टेट है जिसके बीच में कावेरी वाटर डिस्प्यूट या जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट में इन्वॉल्व नहीं है। सो योर ऑप्शंस माइट गो कि तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, एंड अनदर ऑप्शन इज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। वो कोई भी एक स्टेट डाल देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज 4 स्टेट्स: तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एंड पुडुचेरी। ठीक है, moving on to the next important news headline of the day. So this news headline is related to ISRO. So the Indian Space Research Organization will conduct the Space Science and Technology Awareness Training Start 2020 program during April and May. So Indian Space Research Organization is all set to start a START program during April and May. So what is the full form of this abbreviation START? So it is Space Science and Technology Awareness Training. So this is the abbreviation, or this is the full form of the START. So ISRO हैज़ ऑलरेडी सॉलिसिट्स एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। उसमें उन्होंने ऑलरेडी बोला है कि ये वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं अक्रॉस द नेशन, वहाँ पर ये अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स और सारी चीज़ें मतलब ऑर्गेनाइज करेंगे जस्ट टू रेज द अवेयरनेस एंड, और उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा,
टू अट्रैक्ट द यंगस्टर्स टू द फील्ड्स ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्योंकि बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट टर्म होता है, वो आप सब लोगों ने सुना होगा, बेसिकली इकोनॉमिक्स में ज़्यादा टर्म यूज़ किया जाता है, दैट टर्म इज़ ब्रेन ड्रेन। सो स्टॉप द ब्रेन ड्रेन, क्योंकि इंडिया का जो बहुत स्मार्ट ब्रेन होता है वो बेसिकली फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर के फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के लिए काम करने लगते हैं। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को कॉम्बैट करने के लिए, या इस पर्टिकुलर चीज़ को अवॉइड करने के लिए, इसरो इज स्टार्टिंग अ प्रोग्राम स्टार्ट मिशन ड्यूरिंग द अप्रैल एंड मई 2024। वहाँ पे ये बेसिकली जो एक अलग अलग तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे, उनसे ये लोग बच्चों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, या उनको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, या उनको अवेयर करने की कोशिश करेंगे टुवर्ड्स द इसरो। और वो सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसरो को ज्वाइन करें, नॉट गोइंग टू एनी फॉरेन कंट्री। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन फॉर द डे। सो इट्स ऑल दीज ऑल आर द पॉलिटिकल न्यूज़। इनके हमारे लिए ये नहीं है, सॉरी, दिस इज़ नॉट अ पॉलिटिकल न्यूज़, बट या दिस इज़ अ पॉलिटिकल न्यूज़। इसके हमारे लिए कोई रिलेवेंस नहीं है। सो ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल है, बट इस आर्टिकल की भी कोई रिलेवेंस हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट आर्टिकल, या कहिए एकदम भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल हमारे लिए नहीं है। सो फिर आप लोग देख रहे होंगे अनदर पॉलिटिकल न्यूज़, अनदर पॉलिटिकल न्यूज़। ये पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं है, इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं कि कुछ जैसे कुछ लोगों की आदत होती है सब सबके काम में टांग अड़ाना। वैसे एक यूएस की भी एक ये बहुत ही पुरानी आदत रही है कि किसी भी कुछ भी हो तो हर एक चीज़ में टांग अड़ाना। तो अभी क्या हुआ बेसिकली, जो आप सब लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि अब अरविंद केजरीवाल का दिल्ली एक्साइज स्कैम में अरेस्ट हुआ था। तो उस अरेस्ट को लेकर के यूएस का स्टेटमेंट आया है कि एक लीगल प्रोसेस को हम लोग इंडिया को अडॉप्ट करना चाहिए, एक फेयर लीगल प्रोसेस को। सो हाउ इज़ यूएस सो श्योर कि हम लोग अरविंद केजरीवाल के साथ में एक फेयर लीगल प्रोसेस अडॉप्ट नहीं करेंगे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो थे, उनका जो अरेस्ट हुआ था वो पोस्ट अवॉइडिंग 9 समन्स बाय ईडी। तो उन्होंने खुद एक लीगल मैंडेट को एक्सेप्ट नहीं किया था, उसको फॉलो नहीं किया था, तो इसलिए उनका अरेस्ट हुआ था। बट यूएस पता नहीं फिर क्यों इस पार्ट पे भी उसने यही कहा है कि फेयर प्रोसेस का यूज़ होना चाहिए। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन। सो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन क्या है? हाई कोर्ट सीक्स सेंटर स्टैंड ऑन प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। तो हुआ क्या था कि अभी दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटिशन गया था। उस पिटिशन में क्या कहा गया था कि बेसिकली दिल्ली और दिल्ली के आउटर पेरिफेरी पे जितना एरिया है उसको सीएपीएफ से उसकी जो प्रोटेक्शन है उसके लिए सीएपीएफ की जो फोर्सेस हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अलग अलग विंग्स हैं, उसमें से किसी को अपॉइंट किया जाए जस्ट टू प्रोटेक्ट दिस एरिया फ्रॉम द लैंड ग्रैबर्स एंड द क्लाइमेट चेंज या इन्वायरमेंटल डिप्लेशन जो हो रहा है, इसको बचने के लिए, लैंड ग्रैबर से बचाने के लिए, जो लैंड इंक्रोचमेंट होता है, इन सब चीज़ों से बचाने के लिए सीएपीएफ की जो अलग अलग फोर्सेस होती हैं इनका डिप्लॉयमेंट होना चाहिए। ऐसा एक पिटिशन गया था दिल्ली हाई कोर्ट में। ठीक है, अब ये एक्ट एक भवरीन कांधारी करके एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने ये पिटिशन फाइल की थी। इस पिटिशन को लेकर के हाई कोर्ट ने अभी अभी सेंटर का एक क्लियर स्टैंड मांगा है कि सेंटर का एक कितना जो क्या कंट्रीब्यूशन है, सेंटर इस चीज़ में क्या कर रही है, और अलग अलग तरीके की जो चीज़ें हैं वो फॉरेस्ट या अलग जो फॉरेस्ट एरिया है उसके अपलिफ्टमेंट के लिए करनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें से एक रीज़न ये भी कहा गया है कि क्यों जो सेंटर के काउंसिल थे, जो सेंटर के बिहाफ पे प्रेजेंट हुए थे, उनका ये कहना है या सेंटर के बिहाफ पे या सेंटर का ये कहना है कि सीआईएसएफ को जो है वो इन जगह पे नहीं डिप्लॉय किया जा सकता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस को, क्योंकि उसके जो रूल्स हैं वो जो है अलाउ नहीं कर रहे हैं। और जो लैंड ग्रैबर्स हैं जिनके लिए बेसिकली ये पिटिशन गया था कि क्यों उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए, प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है, तो जो वहाँ की लोकल पुलिस होते हैं उनको कई बार थ्रेट्स वगैरह भी मिलते हैं। तो ये सारी एक चीज़ें आप लोगों को ध्यान में एक्सक्यूज मी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन फॉर द डे। पॉलिटिकल न्यूज़, पॉलिटिकल
पॉलिटिकल न्यूज़, पॉलिटिकल तो आप लोग देख रहे हैं कि ऐसी न्यूज़ से हमको बचना है, क्योंकि ऐसी न्यूज़ को डिस्कस करने से कुछ मेंटल एक्सरसाइज भी नहीं होगी, और ये बस हमारी वीडियो की ड्यूरेशन को ये सारी न्यूज़ हेडलाइंस पढ़ाएंगी। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग सिर्फ जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं उन पे अभी फोकस करेंगे। तो अगली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन है, तो अभी हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, ये एक ट्राई नेशन विजिट पर गए हुए हैं। सो इनकी ट्राई नेशन विजिट जो है वो थी, तो अभी इस जो इनकी ट्राई कंट्री विजिट थी, इसमें अभी ये फिलीपींस गए हुए थे। तो फिलीपींस में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, इंडिया सपोर्ट्स फिलीपींस सोवरेनिटी सेज जयशंकर स्पार्क्स बीजिंग रिस्पॉन्स। तो अभी फिलीपींस की जो विज़िट हुई थी, वहाँ पे एस जयशंकर ने ये कह दिया था कि हम लोग जो फिलीपींस की सोवरेनिटी है उसको इंडिया पूरा सपोर्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर विजिट में एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ही इज़ स्पीकिंग ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। और उन्होंने कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट फिलीपींस की सोवरेनिटी को पूरी तरीके से एक्नॉलेज करता है या उसको पूरी तरीके से अफर्म करता है। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे आप सबको अभी पता ही होगा कि इंडिया और चाइना के बीच में जैसी डिप्लोमेटिक रिलेशंस या इंटरनेशनल रिलेशंस या जो आपसी रिश्ते हैं वो बहुत ठीक नहीं चल रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बाद, इंडियन मिनिस्टर के स्टेटमेंट के बाद, जो भी चाइना का भी एक स्टेटमेंट आया है, उस स्टेटमेंट का जो जिस्ट है वो ये है कि चाइना हैज़ कॉल्ड not China has called on third world countries या third countries not to interfere। ठीक है, तो चाइना ने बेसिकली ये कहा है कि जो थर्ड कंट्रीज़ हैं या जो इस पर्टिकुलर पूरे चीज़ से इन्वॉल्व नहीं हैं, जिनका इससे कोई रिलेशन नहीं है, उनको नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। तो बेसिकली चाइना ने इंडिया को थर्ड कंट्री की तरीके से, या थर्ड कंट्री जो नोशन है वो किसके लिए यूज़ किया है चाइना ने, तो वो चाइना के लिए, इंडिया के लिए चाइना ने यूज़ किया है। ठीक है, अब जो ये न्यूज़ है, इसका इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ाई था इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी में इंडिया ने एक्सप्लोरेशन राइट्स के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि चाइना जो है वो ओशन में अपनी डोमिनेंस को इस्टेब्लिश करने के लिए अलग अलग कंट्रीज़ की जो सी वेसल्स हैं या किसी और कंट्री के इंटरनेशनल वाटर्स में या किसी और कंट्री के वाटर्स में, ओशन वाटर में जा कर के वो लगातार इंटरफेयर या इंटरवीन करता ही रहता है। तो इस चीज़ को लेकर के अभी जो कुछ चीज़ें हुई हैं उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट भी हुआ है फिलीपींस को लेकर के, जिसकी वजह से अभी एज ऑफ दिस मोमेंट इस पर्टिकुलर इंसिडेंट या इस पर्टिकुलर विजिट की इम्पोर्टेंस जो है वो इतनी बढ़ जाती है। वो इवेंट क्या हुआ था उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या था, तो बेसिकली जो फिलीपींस की ट्रूप्स हैं अब्रॉड में हैं, तो वहाँ की जो उनको सर्वाइवल के लिए या उनकी ज़रूरत के लिए जो सप्लाईज जा रही थी, तो उसको लेकर के एक फिलीपींस का फिलिपिनो शिप था, वो जा रहा था उन सप्लाईज़ को ले करके। पर क्या हुआ था कि उस शिप पे चाइनीज़ नेवी के लोगों ने अटैक किया था, वाटर कैनन्स वगैरह का यूज़ किया था। तो उसमें जो फिलीपींस के सोल्जर्स थे या जो नेवी मेंबर्स थे उस पर्टिकुलर शिप पे, उन लोगों को इंजरीज हुई थी। तो ये एक इंसिडेंट हुआ था जस्ट बिफोर दिस विजिट। तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे चाइना ने या फिर फिलीपींस ने स्टेप को बहुत क्रिटिसाइज़ किया था। और चाइना ने क्या कहा था कि चाइना ने ये कहा था कि दैट द चाइनीज़ सोल्जर्स आर गार्डिंग दिस चाइनीज़ वाटर। तो वो जो चाइनीज़ सोल्जर्स थे वो लोग चाइना के वाटर को बेसिकली प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम फॉरेन वेसल्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट आया था चाइना का कि उस चाइना बेसिकली किसी भी तरीके से गलत नहीं था। वो फिलीपींस का शिप था जो वहाँ पे गया था, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए चाइनीज़ फोर्सेस उसको प्रोटेक्ट कर रही थी, चाइनीज़ वाटर को। ठीक है, और जो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच के जो एग्जीक्यूटिव मिले हैं, इनके बीच में जो कंप्लीट स्टेटमेंट आया था चाइना का, वो क्या था, तो हम लोग ज़रा इस पे भी देख लेते हैं। मैरीटाइम डिस्प्यूट्स आर इश्यूज बिटवीन कंट्रीज कंसर्न, थर्ड पार्टीज हैव नो राइट टू इंटरफेयर व्हाट्सोएवर। ठीक है,
तो जस्ट बिकॉज इंडिया हैज सेड दैट वी एक्नॉलेज द सोवरेनिटी ऑफ फिलीपींस, China has given this statement that maritime disputes are disputes between concerned countries or the stakeholders. Third parties have no right to interfere whatsoever. ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखनी है। अब एक और चीज़ जो है, जो चाइना को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, चाइना को जो थोड़ा बॉदर कर रही है, जो इंडियन विजिट फिलीपींस की है, उसका एक और रीज़न ये है कि इंडिया जो है वो फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल्स भी बेच रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न हो जाता है, या एक कहे ना जो साइड लाइन रीज़न है या अंडरलाइन रीज़न है, वो एक ये रीज़न भी है कि चाइना को ये जो इंडियन इंडियन इन्वॉय या इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्टर की विजिट है फिलीपींस को, वो पसंद नहीं आई, क्योंकि इंडिया फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहा है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन फॉर द डे। इस न्यूज़ हेडलाइन में इतना ही था कि इंडिया के विजिट थे फिलीपींस में, इंडिया ने उसकी सोवरेनिटी को एक्नॉलेज किया है। इस पर चाइना के कुछ डिसएग्रीमेंट थे। चाइना ने सीधे सीधे कहा है कि जो मैरीटाइम डिस्प्यूट्स होते हैं वो कंसर्न स्टेट्स के बीच में होते हैं, किसी भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट उसमें अच्छा नहीं है। और जो दूसरा रीज़न है कि चाइना क्यों इतना परेशान हुआ है इस विजिट से, वो ये है कि इंडिया ऑलरेडी फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल्स भी बेच रहा है। ठीक है, एक ऑब्यूचरी है, बहुत ही थोड़ा सा सैड न्यूज़ है, इसके बारे में जान लेते हैं। रामकृष्ण मिशन के बारे में तो आप सब लोगों ने थोड़ा बहुत सुन ही रखा होगा। तो उसके जो प्रेसिडेंट थे स्वामी समरनंदा, ठीक है, इनकी जो है वो डेथ हो गई है। दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है लद्दाख से जुड़ा हुआ, कि सोनम वांगचुक कर के एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोनम वांगचुक। ये पिछले 21 दिनों से 21 डे लॉन्ग फास्ट पे थे। ये इनका 21 दिन का जो फास्ट था वो किस लिए था? दैट फास्ट वाज बेसिकली जस्ट टू जस्ट वाज डिमांड, कि वो जो फास्ट था बेसिकली वो पूरा स्टेटहुड है वो लद्दाख के लिए डिमांड कर रहे थे। तो सोनम वांगचुक थे, इनका जो 21 दिन का प्रोटेस्ट था वो बेसिकली सिर्फ लद्दाख का जो स्टेटहुड है, उस लद्दाख के स्टेटहुड की डिमांड थी सोनम वांगचुक की। तो 21 दिन के बाद ये प्रोटेस्ट अब ख़त्म हो गया है। अब इस प्रोटेस्ट को यंगस्टर्स, यूथ और लद्दाख के जो और सारे लोग हैं वो इस प्रोटेस्ट को अब आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। नो, अब इस पे जो सोनम वांगचुक थे, इनका स्टेटमेंट क्या है, तो इनका स्टेटमेंट भी सुन लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। It was for 21 days from tomorrow. Women's groups will start their fast and will be followed by youth, then monks and so on. तो अभी क्या कहा है कि 21 डेज का जो प्रोटेस्ट था उसको सोनम वांगचुक ने स्टार्ट कर दिया। जो इनका 21 डे फास्ट था, इस फास्ट के ख़त्म हो जाने के बाद से विमेंस के ग्रुप, जो वहाँ का यूथ है, मॉन्क्स हैं, सब लोग इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करेंगे। और इन सब लोगों का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, जस्ट टू गेट द स्टेटहुड फॉर लद्दाख। तो ये लोग लद्दाख के स्टेटहुड के लिए ही बेसिकली डिमांड कर रहे हैं, सोनम वांगचुक। और इनका 21 दिन का जो प्रोटेस्ट भी था तो अगला जो ये आर्टिकल है वो साइंस से रिलेटेड है, बेसिकली बायोलॉजी से। तो इस पर बेसिकली हम लोग बस एक टर्म के बारे में अभी के लिए पढ़ रहे हैं, सिकल सेल डिजीज़। तो सिकल सेल डिजीज़ क्या होता है? तो सिकल सेल डिसीज इज बेसिकली एक ब्लड का डिसऑर्डर होता है, ब्लड डिसऑर्डर, हीमोग्लोबिन में। ठीक है, तो सिकल सेल डिसऑर्डर जो होता है ये आपके ब्लड में, जो ब्लड का एक जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन, उसको अफेक्ट करता है। और ये एक इनहेरिटेड डिजीज़ होती है। और हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है? टू कैरी ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है कि सिकल सेल डिजीज़ जो है वो एक ब्लड डिसऑर्डर है, हीमोग्लोबिन से जुड़ा हुआ है। और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन का काम होता है टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन और टू कैरी द ऑक्सीजन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन फॉर द डे।
तो टाइटल फॉर दिस स्पेसिफिक आर्टिकल इज अ क्राई फॉर हेल्प, अ कॉल फॉर रिफ्लेक्शन एंड एक्शन. Cry for help by the students, call for reflection through the stakeholders, and actions to be taken by the stakeholder or the concerned party involved. ठीक है. So to begin with this article, we have to focus on a few important things. Suicide rates जो बढ़े हैं, जो ये अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं कैंडिडेट्स, उनके बीच में जो सुसाइड रेट बढ़ा है उसको लेकर के बेसिकली ये पूरा आर्टिकल जो है उसी चीज़ पर ये फोकस्ड है. और उनकी जो मेंटल कंडीशन है उसमें जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, स्टूडेंट्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, पेरेंट्स, उन सब लोगों का क्या क्या कैसे कैसे इन्वॉल्वमेंट है, कैसे कैसे चीज़ करके पूरे सिस्टम को सही किया जा सकता है, एजुकेशन सिस्टम में हमारे क्या क्या लूप होल हैं, उन सारी चीज़ों पे बेसिकली ये आर्टिकल फोकस कर रहा है. तो अभी हमारे कंट्री के में जो एकेडमिक एजुकेशन को लेकर के, एकेडमिक कल्चर और एजुकेशन को लेकर के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं. बट कई बार ऐसा होता है कि जो एक अनसेट प्रेशर होता है जो एक पेरेंट्स की तरफ से एक्सर्ट या नहीं किया भी जाता है, बस वो आसपास की जो सराउंडिंग कंडीशंस होती हैं वो उसको ऐसा बना देती हैं कि बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं कि एक बच्चा, एक स्टूडेंट जो एक होता है, एक ह्यूमन ब्रेन एट द एज ऑफ 18-19, वो उनके लिए भी कितना बड़ा स्टेप होता होगा टू एंड देयर लाइफ. ठीक है. तो ये अलग अलग तरीके का डेटा है. इस डेटा को हम लोग अभी थोड़ा सा देखेंगे. तो इसमें बताया गया है कि जैसे ही आप कोचिंग सेंटर्स और एग्ज़ाम की बात करेंगे, सबसे पहले किसी के दिमाग में इंडिया में कोटा ही आता है. कोटा में मतलब हर साल अलग अलग फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री हर साल लगभग 2 लाख से 3 लाख के करीब बच्चे जो हैं वो कोटा में रह करके वहाँ पे तैयारी करने जाते हैं. तो मतलब ये 2 लाख बच्चे वो हैं जो अलग अलग जगह से कोचिंग करने के लिए कोटा में जाते हैं. ठीक है. तो इस कोटा से जुड़ा हुआ डेटा ये है कि 15 students in 2022, 18 in 2029 and 20 in 2018. ठीक है. तो 15, 18 और 20. तो 15 बच्चों ने 2022 में सुसाइड किया, 18 ने 2019 में और 20 ने 2018 में. ठीक है. 2020 से 21 का कोई डेटा नहीं, बिकॉज ऑफ कोविड बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद हो गए थे या ऑनलाइन रन करने लगे थे. ठीक है. कोटा अपने आप में एक कोचिंग हब है पूरा, जिसका है मतलब उस पूरे एक स्पेसिफिक एरिया को ऑलमोस्ट माना जाता है 10,000 करोड़ का वो रेवेन्यू जनरेट करता है फॉर द पीपल ऑफ कोटा. या कोटा की इकोनॉमी जो है ये पूरी वहाँ की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हीं पे पूरी रन करती है. ठीक है. अब वहाँ पे जो सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं इसको रोकने के लिए या उनको मतलब उनको कम करने के लिए क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं, तो बहुत सारे एंटी सुसाइड टेक्निक्स हैं. जैसे पंखे में एक टेक्निक होती है कि अगर आप जैसे उसमें सुसाइड अटैम्प्ट करेंगे वो अलार्म बज जाएगा, वो डिसफंक्शनल हो जाएगा. तो ऐसी सारी चीज़ें हैं जो वहाँ के वार्डन हैं, एडमिन वार्डन हैं, मेस से जुड़े हुए लोग हैं, उन सब को ट्रेन करना, उन सब को थोड़ा सा सेंसिटाइज करना इन चीज़ों को लेकर के, वो सब बहुत ज़रूरी है. एक वहाँ पर एक दरवाजे पे दस्तक लेकर करके एक इनिशिएटिव भी है जो चलाया गया है. उस इनिशिएटिव में बेसिकली ये कहा गया है कि वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं और मेस रन करने वाले जो लोग होते हैं वो तुरंत ही पुलिस को या जो कंसर्न अथॉरिटी होगा उसको इन्फॉर्म करेंगे अगर बच्चा थोड़ी सी देर के लिए भी मिसिंग पाया जाता है. ठीक है. तो ये जो डेटा है ये पूरा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा है. इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं. तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा क्या कहता है कि जो टोटल सुसाइड्स हुई हैं तो उसमें से स्टूडेंट्स का सुसाइड कितना है, दैट इज़ 13,089 in 2021, 10,335 in 2019, 12,526 in 2020, 13,089 in 2021. 10 से 12 पहुँचे, 12 से 13 पहुँचे. तो बेसिकली हम लोग देख रहे हैं कि ये डेटा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता ही जा रहा है. ये डेटा में कोई डिक्लाइन या किसी भी तरीके का इस डेटा में डिक्रीज नहीं, डिक्रीमेंट नहीं हुआ है. ठीक है. जो इंडिया में टोटल सुसाइड हुई हैं ठीक है 2022 में, उसमें से 13,044 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने सुसाइड किया, विच अकाउंट्स फॉर 7.6% ऑफ टोटल सुसाइड्स कमिटेड इन दैट ईयर. तो आउट ऑफ द टोटल सुसाइड्स इन इंडिया 7.6% कंट्रीब्यूशन जो है उस सुसाइड में वो स्टूडेंट्स का है. तो ये एक अपने आप में बहुत ज़्यादा
सैड है। तो अब अलग तरीके का इसमें डेटा आ गया है कि अब स्पेसिफिकली 53.7% इज़ मेड अप ऑफ इंडिविजुअल्स अंडर द एज ऑफ 25। तो अभी हम लोग एक पिछले आर्टिकल में डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे थे, इंडिया के यूथ की बात कर रहे थे, वो इसलिए कर रहे थे बिकॉज कि हमारी 53.7% पॉपुलेशन जो है दैट इज़ अंडर द एज ऑफ 25। ठीक है। अब उस पर्टिकुलर आर्टिकल में भी हम लोगों ने बात की थी कि अनएम्प्लॉयमेंट की अलग अलग वजह जो हैं उनमें से क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसमें से एक एसेंशियल स्किल्स जो होते हैं एजुकेशन के साथ साथ में, एक स्किल जो होती है वो एक किसी भी कैंडिडेट के या एक इंडिविजुअल के एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाती है। और इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम भी है उसको लेकर के भी बहुत सारे क्वेश्चंस उठते रहते हैं कि इंडिया की या इंडियन पेरेंट्स की जो हमेशा से अप्रोच रही है टू गो फॉर द गवर्नमेंट कॉलेजेस, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस की कंपैरेटिवली फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है। बट गवर्नमेंट सीट्स के साथ में या गवर्नमेंट कॉलेजेस के साथ में एक जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है या कहिए एक एडेड डिसएडवांटेज जो आता है कि देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स। तो जो पूरा कंपटीशन है मार्केट में या पूरा स्टूडेंट्स के बीच में जो कंपटीशन है वो उसी चीज़ को लेकर के है टू गेट दोज लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स। तो इन सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए एक स्टूडेंट का जो माइंडसेट होता है उसका फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। बट बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसके एक माइंडसेट को में कंट्रीब्यूट करते हैं। एजुकेशन के अलावा वो आसपास का जो उसका इन्वायरमेंट है, वो उसका एक रियल ऑब्जेक्टिव उसने खुद से सेट किया है, क्या उसके पेरेंट्स ने उस पर प्रेशर डाल करके उस पर वो मतलब वो पेरेंट्स के कहने पर वो चीज़ें कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो एक एजुकेशन सिस्टम में और या एक कहिए कि सक्सेसफुल स्टूडेंट का जो करियर होता है या कहिए किसी भी स्टूडेंट की सक्सेस में सिर्फ उसके एजुकेशन का ही नहीं कंट्रीब्यूशन रहता, उसमें बहुत सारे एडिशनल फैक्टर्स भी होते हैं, वो भी रहते हैं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल जो था बेसिकली इसी चीज़ से रिलेटेड था कि कैसे जो मतलब एक अनसेड प्रेशर है वो हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को या कई बार वो बच्चे की लाइफ को ही ले लेता है। तो इस चीज़ को यहाँ पे याद रखना है। एक दूसरा जो आर्टिकल है स्टॉप द वॉर, तो इसका हम लोग हेडलाइन पढ़ लेते हैं और फिर इसमें इस आर्टिकल के बारे में इज़राइल मस्ट हीड द यूएनएससी रेजोल्यूशन फॉर सीज फायर। तो बेसिकली अभी कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन लेकर के आया गया था। उस रेजोल्यूशन ने बेसिकली जो उसका ऑब्जेक्टिव था या जो उसका मेन आइडिया था वो ये था कि गाज़ा में इमीडिएट सीज़ फायर का होना। तो अब वो सीज़ फायर क्यों डिमांड की जा रही थी? ह्यूमैनिटेरियन एड्स जो हैं वो वहाँ तक जो मतलब अफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही हैं बिकॉज ऑफ द कॉन्टीन्यूस वॉर बिटवीन द इजरायली डिफेंस फोर्सेस द एंड द मिलिटेंट्स ऑफ द हमस। तो हमस के जो मिलिटेंट हैं और इजराइल डिफेंस फोर्सेस के बीच में जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से जो पूरी ह्यूमैनिटेरियन एड है वो अफेक्टेड लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। इस चीज़ को लेकर के एक यूएनएससी में रेजोल्यूशन आया था और ये रेजोल्यूशन पर जो था सारी कंट्रीज़ ने ही इसको सपोर्ट किया था। जो दो कंट्रीज़ थी जिन्होंने इस पर अपना वीटो पावर यूज़ किया, वो दो कंट्रीज़ कौन कौन सी थी? एक रशिया एंड चाइना ने इस रेजोल्यूशन को वीटो कर दिया। अब इस रेजोल्यूशन के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि फॉर द फर्स्ट टाइम यूएस ने जो था उसने भी इस रेजोल्यूशन का सपोर्ट किया था, जो कि पहली बार ऐसा था क्योंकि इससे पहले जितने भी रेजोल्यूशंस आए थे टू स्टॉप द या टू डिमांड द सीज फायर, उनको सारे को ही वो उनके अगेंस्ट था यूएस। ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। और जो ये वॉर बेसिकली स्टार्ट हुआ था उसके पीछे के दो ऑब्जेक्टिव यही थे कि इजरायली फोर्सेस जो हैं वो सारे के सारे जो जिन लोगों को हॉस्टेज बनाया गया था हमस फोर्सेस के द्वारा उनको छुड़ाना और हमस मिलिटेंट्स को कंट्रोल में करना या उनको ख़त्म करना। अक्टूबर में ये वॉर स्टार्ट हुआ था। ठीक है। अब कितना टाइम होने को आ गया है, अभी तक इन दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में इज़राइल गवर्नमेंट जो है, नेतन्याहू गवर्नमेंट है, वो पूरी तरीके से फेल रही है। ठीक है। इस वजह से जो पूरे वर्ल्ड का स्टैंड है इनिशियली जो इज़राइल के फेवर में था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बदलता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इज़राइल के ही जो अलग अलग टैक्टिक्स और टेक्निक्स यूज़ की जा रही हैं या जो वॉर की कंडीशन या कॉन्टीन्यूसली वहाँ पे इज़राइल में है उसकी वजह से जो ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो अफेक्टेड एरियाज़ तक और सिविलियंस तक नहीं पहुँच पा रहा है। ठीक है। तो इस चीज़ को भी इज़राइल को ध्यान में रखना होगा कि अगर आपके वॉर का जो ऑब्जेक्टिव था वही अगर आप फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं एक सर्टेन पॉइंट ऑफ या सर्टेन टाइम में, तो उसकी वजह से इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी फ़र्क पड़ रहा है। जैसे कि यूएस जो था वो पहले इज़राइल के साथ में था जो बाइडन गवर्नमेंट थी, बट वो अभी जो है वो थोड़ा सा उनका स्टैंड जो है वो
अलग हो गया है। ये आर्टिकल बेसिकली साइकिल और साइकिलिंग के जो बेनिफिट्स हैं, अलग अलग डेटा सेट्स हैं जो अर्बन और रूरल एरियाज़ में साइकिल चलाने वालों की पॉपुलेशन या कैसे कैसे, या साइकिल चलाने वाले जो नंबर हैं लोगों का वो बढ़ रहा है, उसका क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, उन सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ ये आर्टिकल है। तो एज ऑफ नाउ हम लोग इस आर्टिकल को स्किप करते हुए आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। आगे क्या न्यूज़, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उनकी तरफ। तो we won't be we won't be discussing this article, the democratic political process is broken, बिकॉज ये वी डोंट थिंक कि हमें हमें ऐसे आर्टिकल्स को डिस्कस करने की अभी कुछ रेलेवेंस है। द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस इज़ ब्रोकन। अब ये फिर एक पॉलिटिकल आर्टिकल है, इट्स ऑल इन द फैमिली, नो पार्टी इन कर्नाटका कैन टेक अ मोरल हाई ग्राउंड ऑन डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। ठीक है, तो इट्स पॉलिटिकल आर्टिकल, इसकी भी कोई म्यूनसिपल इलेक्शंस में कंप्लीट रिफॉर्म्स को लेकर के ये आर्टिकल है, अलग अलग स्टेट्स में। ठीक है, कैसे करके क्या क्या चीज़ें अपनाई जानी चाहिए। अब जो है थोड़ा सा इस एक न्यूज़ को देख लेते हैं। तो ये न्यूज़ क्या है, द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB has spent only 20% of the environment protection charge and environmental compensation collected so for mitigating air pollution in Delhi। तो CPCB ने क्या किया है, द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कि उनके पास जो टोटल दिल्ली में पोल्यूशन कम करने के लिए जो कॉम्पनसेशन या जो अलग अलग तरीके से सेस फाइन वगैरह या जो कॉम्पनसेशन कलेक्ट किया गया था, CPCB ने सिर्फ उसका 20% ही यूटिलाइजेशन किया है। 80% अभी भी अनयूटिलाइज फंड पड़ा हुआ है। अगला जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो ब्लैक कार्बन एमिशन से जुड़ा हुआ है। ब्लैक कार्बन क्या होता है बेसिकली, जब ब्लैक कार्बन एमिशन क्या है और इसको हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो बेसिकली ब्लैक कार्बन क्या होता है, जब कई बार आप लोग देखते होंगे ना कि जब कोयला वगैरह या कुछ ऐसे जल रहा होता है तो उसमें आप धुएं के साथ साथ में ना हल्का सा काला काला कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं धुएं के, या वो काले काले से वो उड़ते हैं, बेसिकली वही ब्लैक कार्बन होता है। सो ब्लैक कार्बन जो होता है ये कैसे ये नुकसानदायक होता है, तो जो ब्लैक कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली ये क्या करते हैं, ये जो एटमॉस्फेरिक हीट होती है, जो एटमॉस्फेयर में हीट होती है, इसको बढ़ा देते हैं। कैसे करके, मान लीजिए कि अगर कोई एक ब्लैक कार्बन का पार्टिकल है वो किसी आइस के ऊपर जाकर के चिपक गया है, तो ब्लैक जो कलर होता है वो क्या करता है, वो वैसे ही हीट बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व करता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो वो हीट एब्जॉर्व करेगा तो उसके नीचे बर्फ़ रहेगी तो वो ज़्यादा जल्दी से पिघलेगी। ठीक है, तो ये क्लाइमेट चेंज में कैसे अफेक्ट करता है ये तो आप लोगों को। अब दूसरा रीज़न ये है कि एटमॉस्फेरिक हीट को कैसे बढ़ाता है, इसका सरफेस जो रहता है कार्बन का वो कॉन्टिन्यूसली गर्म होता रहता है, उस गर्मी की वजह से जो एटमॉस्फेरिक हीट होती है वो भी बढ़ जाती है, उसकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज होता है। ठीक है, अब हम लोग इस आर्टिकल में थोड़ा सा एंटर करेंगे। तो इस आर्टिकल में एंटर करने से पहले हाँ, तो 2026 में बेसिकली जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुई थी COP 2021 में, COP26, वहाँ पे इंडिया ने प्लेज किया था कि दैट विल अचीव नेट ज़ीरो एमिशन बाय 2070। ठीक है, तो ब्लैक कार्बन एमिशन को पढ़ने का जो मेन रीज़न वो ये है कि हम लोग 2070 तक कार्बन न्यूट्रल स्टेट अचीव करने का या ऐसा टारगेट अपने लिए सेट करके ऑलरेडी हम लोगों ने रखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ एक आती है, एक इसमें जो इम्पोर्टेंट डेटा सेट्स हैं उनको देख करके हम लोग थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो ब्लैक कार्बन जो होता है वो हार्ट डिसीज़ और बर्थ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं ब्लैक कार्बन की वजह से। और ब्लैक कार्बन जो होता है वो किस वजह से होता है, बर्निंग बायोमास, काउ डंग एंड ट्रेडिशनल कुक स्टोव्स। ठीक है, और इंडिया में टोटल जो ब्लैक एमिशन होता है उसमें से 47% जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो हाउस होल्ड्स का रहता है। इस चीज़ को गवर्नमेंट, ये डेटा गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी था, इसी वजह से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक आई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंडर में ये हुआ था कि गवर्नमेंट जो है उसने जो है फ्री गैस कनेक्शंस जो थे वो BPL लाइन के नीचे जो लोग रहते हैं उनको फ्री गैस कनेक्शंस जो थे वो प्रोवाइड कराए गए थे। बट उसमें क्या हुआ था कि गैस कनेक्शन प्रोवाइड कराना बड़ी चीज़ नहीं, बात यह है कि जो वहाँ पे रीफिलिंग होती है, जो गैस की रीफिलिंग होती है, एक बार सिलेंडर देने से सिर्फ काम नहीं चलता है ना, उसकी रीफिलिंग भी एक ज़रूरी चीज़ होती है। तो उसकी जो रीफिलिंग थी 25% जिन लोगों को पूरा मिला था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंडरगत जो उसके बेनिफिशियरी थे, उसमें से 25% लोगों ने उसकी जो रिफ़िल थी वो कभी करवाई नहीं। उनको जो पहला कनेक्शन मिला था उसके बाद उन्होंने कभी कोई रिफ़िल नहीं करवाई।
और एवरेज जो कंज्यूमर है वो सिर्फ 3.5 से 4 एलपीजी सिलेंडर्स को ही कंज्यूम कर रहा है, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंडर में एलपीजी कनेक्शंस मिले थे। बाकी जो एवरेज इंडियन है वो 6 से 7 एलपीजी सिलेंडर्स कंज्यूम करता है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक एक्सेसिबिलिटी जो होती है, एक वो मेन रीज़न है। और दूसरा, एक्सेसिबिलिटी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, अफोर्डेबिलिटी। जो नंबर्स कम हो रहे हैं या सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि सबको पता है कि गैस जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट मोड है खाना बनाने का, बट उसके बावजूद लोग अलग अलग या गाय की गोबर की उपलें या लकड़ी वकड़ी है उनकी तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो सिलेंडर को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। और जो घर से निकलने वाला जो ये पोल्यूशन है, इसका 47% कंट्रीब्यूशन है। तो हमको सबसे पहले इसको ही कंट्रोल में करना होगा। जो घर से या डोमेस्टिक ब्लैक कार्बन एमिशन है, इसको करने के लिए हमें एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन सिलेंडर का जो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन सिलेंडर मैकेनिज्म है, इसको सही करना होगा। अफोर्डेबिलिटी को थोड़ा सा और रीच में लेकर के आना होगा कि हर एक आदमी जिसके पास में वो सिलेंडर का कनेक्शन है, वो बिना सोचे समझे अपना उसको यूज़ कर सके। ठीक है। तो इसका इतना ही रेलेवेंस था कि कैसे कैसे अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ को ऊपर नीचे किया है, सिलेंडर्स के दाम को ऊपर नीचे किया है, जस्ट टू रेगुलेट एवरीथिंग और टू अचीव द कार्बन नेट ज़ीरो टारगेट बाय 2070। ठीक है। और हाउस होल्ड सेक्टर पे मेनली क्यों फोकस किया गया है? क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर जी है जिसका कंट्रीब्यूशन है कितना, 47%। तो इसलिए सबसे पहले हाउस होल्ड एमिशन जो है ब्लैक कार्बन का, उसको ही कंट्रोल करना ज़रूरी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन फॉर द डे। ये तो हम लोग अभी बिजनेस सेक्टर में आ गए हैं या बिजनेस न्यूज़ हेडलाइंस में आ गए हैं। तो बिजनेस न्यूज़ हेडलाइंस में भी ऐसा कोई कॉन्क्रीट न्यूज़ नहीं है। रेगुलर न्यूज़ जो होती हैं कि किस कंपनी ने कितना एक्सपेंशन के लिए किया, अडानी पोर्ट्स ने जो ओडिशा का गोपालपुर पोर्ट है उसको एक्वायर किया है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इससे जुड़ी हुई हैं। और इसमें कुछ इतना बड़ा या कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, इम्पोर्टेंट इवेंट नहीं हुआ जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो keep on skipping this, we'll skip this. सो थोड़ा सा इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर करेंगे। तो इंटरनेशनल एस्पेक्ट से जुड़ी हुई सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आज के लिए हमारे पास। वो न्यूज़ क्या है? सेनेगल कंट्री जो है, सेनेगल, उसने उसके प्रेसिडेंट जो थे, वहाँ पे एक नया प्रेसिडेंट बने। उनका नाम क्या है? बसिरो डियोमे फाय। तो वहाँ के सेनेगल के नया प्रेसिडेंट कौन है? बसिरो डियोमे फाय। ठीक है। फॉर्मर टैक्स इंस्पेक्टर थे जिनको सेनेगल का नया प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन फॉर 27 मार्च 2024। यप। तो विकीलीक्स के जो फाउंडर थे जूलियन असांजे, उनका जो टेम्परेरी रिलीफ उनको मिल गई है किस चीज़ में? तो इनका जो एक्सट्रैडिशन था वो अप्रूव कर दिया था यूके गवर्नमेंट ने। तो इनका यूएस में इनका एक्सट्रैडिशन होना था, बट ये एक्सट्रैडिशन को अभी होल्ड पे लगा दिया गया है एक यूके के कोर्ट के द्वारा। सो अभी इनका जो एक्सट्रैडिशन है वो नहीं हो पाएगा। फिर जो रशिया में अभी एक अटैक हुआ था, तो उसको लेकर के ये न्यूज़ हेडलाइन है। तो ये इसकी क्या, एक टेररिस्ट अटैक की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, इसमें अलग कोई एस्पेक्ट इससे जुड़ा हुआ है नहीं, तो इसलिए इसको भी हम स्किप करेंगे। हाँ, तो यूरोपीय यूनियंस ने जो बहुत बड़ी बड़ी टेक फर्म्स हैं, कौन कौन सी, मेटा या अल्फ़ाबेट, इन सबको बोला है कि आप लोग डी फेक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एआई डी फेक्स जो हैं उसमें हेल्प करेंगे। ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस। तो सो यूनाइटेड नेशंस के जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, तो इनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेटा आया है। इम्पॉर्टेंट डेटा कहिए कि जो टोटल माइग्रेंट डेथ्स होती हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें से जो 60% डेथ्स होती हैं वो ड्राउनिंग की वजह से होती हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न भी क्या है कि जो ओपन सी होता है या जो सी बॉर्डर्स होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग तैर के कोशिश करते हैं कि वो दूसरे कंट्रीज़ में चले जाएं। तो इसकी वजह से भी
ये चीज़ हुई है, और टोटल 64,000 माइग्रेंट्स के रिकॉर्डेड डेथ्स हुई है पिछले एक डिकेड में। ये माइग्रेंट्स के नंबर है, और इसमें से 60%, दैट इज़ 38,400 जो हैं वो जो है ड्राउनिंग की वजह से डेथ्स हुई हैं। तो स्पोर्ट्स सेक्शन में भी हमारे लिए कोई आज के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है नहीं। सो विद दिस वी हैव completed द टुडेज न्यूज़ एनालिसिस ऑफ द हिंदू। तो अगर आपको आज के वीडियो में कोई भी चीज़, अगर कोई चीज़ आपको एडिशनल और चाहिए इस वीडियो एनालिसिस में, या कोई चीज़ आपको लगता है कि किसी भी तरीके की कोई शॉर्ट कमिंग थी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एनालिसिस ऑफ द हिंदू, और कल हम लोग फिर मिलते हैं कल के वीडियो एनालिसिस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल के वीडियो एनालिसिस में। थैंक यू सो मच।